Good morning once again, and I'm going to start a new topic here today, which is what role of pH in everyday life. Okay, in which we will study 4 or 5 subtopics are there. So I'm starting with the first one, which is what are plants and animals pH sensitive? So the answer is what? Yes, they are sensitive to pH. Okay, if because we work very well within the our system work very well within the pH range of 7 to 7.8. Okay, but if the pH falls below 7, okay, if it goes down 7 से कम हो गया, or if the pH is more than 7.8, okay, we will be unable to survive. Okay, so in this topic what has been explained in this topic is what acid rain, which one everyone knows that acid rain is what? When the pH falls below what? 5.5, I think. It falls below 5 point, in fact 6, then this is known as acid rain. Now let us understand what is acid rain actually, how it happens. We know that there are many gases present in atmosphere, right? One of the gases that we exhale, okay, the gas that we exhale is what? CO2, carbon dioxide, okay. But when it comes in contact with water vapor, okay, or moisture, what happens? It forms H2CO3, which is what? Carbonic, थोड़ा clear दिखाओ, carbonic acid. Okay, that is why you will if you want to measure the pH of rainwater, it is not actually if you say that it will be 7, okay, hardly possible. It could be somewhere in between, it could be 5.6 or 5.7, like that. But if the pH of rain falls below 5.6, means 5.543, और यूजुअली पीएच एसिड रेन का कितना देखा गया? 4 तक देखा गया कि 4 भी होता है, और इनफैक्ट कहीं कहीं पे 2 भी मिला है, विच इज़ हाईली एसिडिक. लेकिन एसिड रेन ऐसी नहीं होती कि आपकी स्किन पे जो है यू विल फाइंड ब्लिस्टर्स या फिर कुछ आपकी स्किन में कुछ इतना ज़बरदस्त डैमेज कर देगी, आप मेकआउट कर पाएंगे. बट एसिड रेन होती क्यों है और कैसे होती है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, एसिड रेन आपको पता होगा वैसे भी. ताजमहल, ओके, ताजमहल में कौन सा वाला स्टोन लगा हुआ है? मार्बल लगा है, ठीक है, एंड इट हैज़ टर्न्ड येलो. ओके, येलो हो गया है ना, क्यों? बिकॉज ऑफ द एसिड रेन. अब एसिड रेन कैसे होती है वो हम थोड़ा और समझ लेते हैं. देखिए, जब हम ऑटोमोबाइल्स ये सब रन करते हैं या फिर रिफाइनरीज में क्या होता है? सॉक्स एंड नॉक्स, मीन्स ये 2 टाइप की इस तरह की गैसेस रिलीज होती हैं, जिसमें मैं कहूँगी दिस इज SO2, इस पे जूम करना, एंड दिस इज SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. उसको मैंने सॉक्स लिख दिया. सिमिलरली फॉर नॉक्स, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. कहाँ प्रोड्यूस होता है? व्हेन यू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस व्हाट? sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide. Okay, obviously ये gases हैं, they will rise up and they will mix with, they will react with what? Water, moisture that is present in air. और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है. Let me rub from here. ऐसे कर लेते हैं. तो बच्चों, हमें एक समझ में आया कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस व्हाट? SO2, SO3, NO2. तो जब आप देखेंगे कि SO2 व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, ओके, इट फॉर्म्स व्हाट? H2SO3, विच इज व्हाट? सल्फ्यूरस एसिड. थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ मैं. SO3, okay, which reacts with water, forms what? H2SO4, which is what? Sulfuric acid. दिख रहे? Okay, now sulfurous acid, sulfuric acid, both are
acid. Okay, when they come down with rain, obviously they will cause, you know, they will lower the pH of rainwater, and that is what acid rain will be. This is how acid rain is, you know, usually happens at those places where there's lots of pollution, okay, air pollution. And you will find one more thing, आपको मैंने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बताया ही. व्हेन इट विल रिएक्ट विद व्हाट, व्हेन इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या बच्चों बनेगा, ये मैं आपको एडिशनली बता रही हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज एसिड रेन. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, राइट. ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन इट विल रिएक्ट विद वाटर, ओके, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, ओके. और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन इट विल रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म व्हाट, HNO3, विच एवरीवन मस्ट बी नोइंग कि ये क्या है. आई थिंक यू कैन नेम दिस एसिड, एंड दिस इज व्हाट, नाइट्रिक एसिड, and HNO2, nitrous acid. तो आई थिंक अगर पेपर में आपका कुछ ऐसा आया कि व्हाट इज एसिड रेन, तो आप इसके बारे में अच्छा खासा लिख सकते हैं ना, विद रिएक्शन भी लिख सकते हैं इफ़ यू लाइक. तो दिस इज एक्चुअली एसिड रेन, ओके. एसिड रेन की यूजुअली pH it falls below 5.6. if the rain water has pH less than 5.6 then it is known as acid rain. अब वो चाहे जितना भी हो, 5.5 हो, 5.4 हो, 5.3, बट यूजुअली देखा गया है कि एसिड रेन का कितना pH होता है, 4 तक देखा गया. मैंने 2 आपको बता चुकी हूँ कि कहीं कहीं कुछ केसेस में इतना ज़्यादा एसिडिक हो गया था वाटर कि वो 2 तक पहुँच गया था, ओके. तो ये आई थिंक ये क्लियर होगा. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू subtopic here. Okay, so the next topic is what is the pH of the soil in your backyard. Yes, one thing that I forget to tell you is the atmosphere of Venus, that why we are what is the reason that why we cannot live on the surface of Venus. So the reason is what, its surface is covered by thick clouds of sulfuric acid, okay. And that is why we are unable to live, because if it is covered with thick clouds of sulfuric acid, it's going to obviously lower the pH to a very high extent, and that is why we will be unable to survive. तो why Earth is a unique planet, क्योंकि Earth पे 7 to 7.8 pH बहुत अच्छे से maintained है, okay. और अगर ये pH maintain नहीं रहेगा तो obviously we will be unable to survive, okay. Now what is the pH of the soil in your backyard? इसमें हम देखिए, इसमें बहुत इजीली ये टेस्ट कर लिया जाता है लैब में. इसमें क्या है, आप कुछ सैम्पल्स ले लीजिए. व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू कलेक्ट सैम्पल्स लाइक सॉइल के सैम्पल्स आपको लेने, और 2 ग्राम सपोज आपने सॉइल ली, ओके. और उसमें आपने थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर लिया. आपके बुक में भी दिया हुआ है 5 ml. 2 ग्राम सॉइल ली आपने और 5 ml वाटर ऐड किया, ओके. उसको स्टर कर लिया, और उसके बाद क्या करना है आपको, यू हैव टू पास दैट मिक्सचर थ्रू फिल्टर पेपर, ओके. मीन्स यू हैव व्हाट यू हैव टू डू इज टू डू फिल्ट्रेशन. और जब आप फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, रेसिड्यू जो फिल्टर पेपर पे बचेगा वो क्या होगा, विल बी रेसिड्यू. और आपके टेस्ट ट्यूब में जो रह जाएगा क्लियर लिक्विड जैसा जो आपको दिख रहा होगा, विल बी अ फिल्ट्रेट, okay. And with the help of a pH paper you will be able to know approximate idea आपको हो जाएगा कि what will be the pH of that particular soil. कभी कभी होता है हम जो है बहुत चाह रहे होते हैं कि ये सीड क्यों नहीं, इसमें क्यों नहीं जर्मिनेशन हुआ, क्या इसमें ऐसा हो गया. तो हो सकता है pH की प्रॉब्लम हो सॉइल में. सॉइल का pH, और सॉइल नेचुरली अपने आप तो कम नहीं हो रहा pH किस वजह से कम हो जाता है, कभी कभी यानी सॉइल एसिडिक भी हो जाती है और कभी कभी एल्कलाइन भी हो जाती है. तो सॉइल एसिडिक, देखिए आपने फार्मर्स को भी देखा होगा, अगर किसी बच्चे का थोड़ा वैसा बैकग्राउंड है, किसी फार्म्स हैं या फिर आपके तरफ कुछ थोड़ी बहुत वेजिटेशन या कुछ ऐसा वो किया जाता है, तो आप देखेंगे कि कभी कभी सॉइल एसिडिक हो जाती है. एंड बहुत ही सीधा सा वे होता है उसको ट्रीट करने का, इज टू ट्रीट विद चॉक पाउडर.
राइट। चॉक पाउडर से ट्रिक, पहली बात हमें एसिडिक आपको बताई थी, अगर इफ द सॉइल इज एसिडिक, ओके, तो सॉइल एसिडिक क्यों हो जाती है? क्योंकि अमोनियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज करे जाते हैं और उससे सॉइल जो होता है, जब ज्यादा लॉन्ग यूजेज हो जाता है तो सॉइल टर्न एसिडिक। ओके, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ acid present in the soil which hampers the growth of the plant, what we used to add is a very simple chalk powder which is calcium carbonate हम ऐड कर सकते हैं, which will neutralize the effect of acid. Means what is the nature of calcium carbonate? It is basic. Okay, so neutralization reaction will happen and it will obviously counter effect the acidity, and in this way the soil could be treated. Okay, तो ये इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर 5 पॉइंट सॉइल का भी पीएच अगर गिरे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इट नीड्स टू बी ट्रीटेड। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? So the next topic is pH in our digestive system, which we will study. If I will start this topic, okay, I want to start the topic by asking you one question. Which acid is produced by stomach? Your answer, I think all of you will be knowing that stomach produces what? Which acid? HCl. It is quite amazing. Okay, HCl is produced by stomach, and it has some reason that why HCl, why hydrochloric acid is produced in stomach. And stomach being obviously it is also a very vital organ, but how it is protected? Because stomach has a special lining. Okay, it has a special membrane which protects the stomach, okay, being harmed from the corrosive effect of HCl. Okay, वन अदरवाइज तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, है ना। आपने अल्सर्स में जैसे सुना होगा, जब बहुत सीवियर पेन होता है तो वो उस केसेस में यही होता है। तो स्टमक प्रोड्यूसेस HCl। ओके, अब हमें ये पता है कि HCl प्रोड्यूस हो रहा है। HCl का फंक्शन क्या है? HCl ऑब्वियसली हेल्प्स, यू नो, इट हेल्प्स इन डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड वन मोर थिंग, इट यू नो इट इज यूजफुल फॉर दैट if any harmful bacteria, if they are going to enter with our food, they could be killed by what? The same HCl. So that is the function of HCl. But what happens when we, you know, sometimes we consume lots of spicy food, and you may experience that such type of spicy foods cause what? एसिडिटी। कहते हैं ना, एसिडिटी, बहुत ही बर्निंग पेन सेंसेशन हो रही होती है, बहुत रेस्टलेसनेस। ओके, उसमें हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है। ओके, एसिडिटी क्यों हो गई? क्योंकि आपने इतना स्पाइसी फूड ले लिया, उसकी वजह से HCl भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया स्टमक में। ओके, और उससे हो गई एसिडिटी। तो उसके लिए ऑब्वियसली उसका एंटीडोट क्या है? एसिडिटी अगर हो रही है आपको, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं? हाउ कैन यू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट? बाय टेकिंग antacids. Okay, which is what? Milk of magnesia. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, if you remember. Milk of magnesia, which is what? Magnesium hydroxide in water. Okay, so this is what? It is obviously basic in nature. I told you in my previous lectures also that magnesium hydroxide, okay, metal hydroxides are basically, they are basic in nature. Okay, and when you have acidity, it could be, you know, neutralized by taking milk of magnesia. Okay, so milk of magnesia आपने ले लिए, या फिर इसकी हमें pH रेंज भी पता होनी चाहिए भाई। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की क्या pH रेंज होती है? तो 10 to 10.5 आप देखेंगे बुक्स में, 10 to 10.5। ओके, so this is about pH in our digestive system. और सब चीज़ों में आप देख रहे होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही आपको समझाया जा रहा है कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आप डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हैं वो पढ़ाया जा रहा है इसमें। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज pH change as the cause of tooth decay. Okay,
टूथ डिके कैसे होता है, पीएच चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, आपको जब मैंने एक टेबल अभी लास्ट वीडियो में जब करवाई थी तो आपको बताया था सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील, तो आपने देखा होगा सलाइवा बिफोर मील 7.4, यानी मुंह का पीएच, हमारे माउथ का पीएच 7.4 उसके अराउंड था, है ना। और जब हमने खाना खाया तो उसके बाद वो पीएच एकदम से क्या हो गया, लोअर हो गया, और वो कितना हो गया था, वो 5.8 के अराउंड हो गया। तो इफ द पीएच फॉल्स बिलो 5.5, 5.5 से भी अगर कम हो जाए पीएच तो इट कॉजेज टूथ डिके। तो वो हम समझ लेते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। तो टूथ डिके कब होगा, आपने शायद और पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या टूथ इज मेड अप ऑफ व्हाट, 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज इनेमल, ये पढ़ा होगा आपने, इनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस डेंटाइन, ओके, पल्प, ये 3 उसके पार्ट्स होते हैं हमारे जो टूथ के। तो सबसे ऊपर जो टफ कवरिंग है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ओके। हम बाकी पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी, एंड दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो मैं आपको एक छोटा सा काम दे सकती हूँ, when you are watching this video try to find out the formula for calcium phosphate, what it could be। आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो। कैल्शियम फॉस्फेट +2 -3 क्रिस क्रॉस कर दिया, ऑल्दो वैलेंसी पे साइन जो भी +2 -3 इसका कोई इसमें इफेक्ट नहीं है, तो आप जानती हैं सिग्निफिकेंस नहीं है। Ca3 PO4 ट्वाइस, ओके। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट है, इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ओके, प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एंड इट इज़ सो हार्ड दैट इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट व्हेन द pH of our mouth, okay, it falls below 5.5, what happens, it starts corroding। ये क्या होने लगता है, its surface start corroding, और उससे क्या हो जाता है, सीधा टूथ डिके, ओके। बहुत आपके दांत टीथ सेंसिटिव हो जाएंगे, ओके। टूथ डिके शुरू हो जाएगा, करोड होने लगेगी आपकी इनेमल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके। अब क्यों पीएच 5.5 हो रहा है, क्या वजह है, तो इसके लिए भी समझना थोड़ा सा बच्चों ज़रूरी है। So one thing we should know, okay, in order to understand why the pH is falling below 5.5. See, when the food that we consume, okay, suppose we have consumed sugary food item, okay, or any type of food, we know that in our mouth there are bacteria present, okay, and these bacteria, they start, degradation of sugary products or the food that we have taken, which was left in between the teeth also। तो आप देखेंगे क्या वो हो जाएगा, they start releasing what, acid during this process। बस ये चीज़ समझनी है कि एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं वो, और जब एसिड प्रोड्यूस करते रहते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू लोअर द पीएच ऑफ योर माउथ, लोअर द पीएच ऑफ माउथ। ये कब हो रहा है, व्हेन वी कंज्यूम फूड, ओके, एंड वी डिड नॉट रिंस आवर माउथ, हमने अब ब्रश नहीं किया, एंड वी गो टू बेड, ओके, वी आउट ऑफ लेजीनेस हम सो गए उसी टाइम फॉरनी, तो क्या होता है, इतनी देर तक आपका मुंह जो है बहुत देर तक बंद रहता है ना, आपने ब्रश नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, दे स्टार्ट डिग्रेडेशन ऑफ दिस शुगरी फूड प्रोडक्ट्स, है ना, और जब जो भी खाना बचा है तो इन दैट प्रोसेस एसिड इज प्रोड्यूस्ड, एसिड प्रोड्यूस होगा तो इट विल लोअर द पीएच, एंड व्हेन इट विल लोअर द पीएच व्हाट विल हैपन, दैट acid is going to attack calcium phosphate, which is from which our enamel is made up of, okay। तो हमें नेचर ने एक डिफेंस के लिए हमें एक चीज़ दी है, which is what, सलाइवा, ओके। तो सलाइवा जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, इट समहाउ न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ द एसिड, इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। ये न्यूट्रलाइज तो करता है, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, बट थोड़ा बहुत जो भी एसिड बचा रह जाता है, इट कैन कॉज हार्म। तो टूथ डिके एक दिन में नहीं होता है,
ये बहुत लंबी प्रैक्टिस होती है किसी की भी, जो लोग ब्रश नहीं करते हैं सोने के बाद तो टूथ डिके हो जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे टूथपेस्ट, आपको जब मैंने एसिड बेसिस सॉल्ट्स शुरू किया था चैप्टर, आई टोल्ड यू दैट टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट कैसे होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। तो उसी तरह से ये बनाए गए टूथपेस्ट दैट दे pH रेंज विल बी फ्रॉम 9 to 10, ओके, जो कि आपको हार्म भी ना करे, इतना भी बेसिक ना हो कि बिल्कुल ही हाल ख़राब हो जाए। तो 9 to 10 तक pH होता है जो अच्छे टूथपेस्ट होते हैं, ओके। तो वो क्या करेगा? इट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द रिमेनिंग एसिड एंड ऑब्वियसली आपका माउथ बहुत देर तक एसिडिक नहीं रहेगा, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ, so the next topic is self defense of animals and plants through chemical warfare, okay। यानी एनिमल्स और प्लांट्स भी अपने डिफेंस में क्या रिलीज करते हैं? एसिड और बेस रिलीज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सो आप देखेंगे ये चैप्टर, ये टॉपिक जब स्टार्ट हुआ तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? कभी आपको हनी बी ने काटा है? ओके, और हर कोई शायद डरता होगा, मुझे तो डर लगता है हनी बी से, ठीक है, क्योंकि हनी बी का जो स्टिंग होता है, ओके, हनी बी, ओके, उसका जो स्टिंग होता है वो कैसा होता है? इट इज व्हाट? इट इज एसिडिक in nature, okay। Honey bee releases an acid into our body with the help of a sting, and if we want to get relief from this sting, what we need to do? First of all, we if possible then one has to remove the sting with the help of a hand, है ना। आप उसको प्रेस करके उस पार्ट को स्टिंग निकाल सकते हैं। वन वे आइसिंग लोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम एसिड और बेस की बात कर रहे हैं ना, तो हम ऐसी वाली रेमेडीज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो एसिड अगर रिलीज हुआ है तो आई थिंक दैट यू हैव सम आइडिया कि हम उसमें बेसिक क्या चीज़ डाल सकते हैं। यू कैन ऐड व्हाट? यू कैन अप्लाई बेकिंग पाउडर पेस्ट विच इज़ बेसिक इन नेचर। आप वो बेकिंग पाउडर का पेस्ट इन वाटर ऑब्वियसली उसको अप्लाई कर सकते हैं ऑन दैट अफेक्टेड पार्ट जिस पे हनी बी ने काटा है। हनी बी बहुत जल्दी नहीं काटती है, ओके, वो जब बिल्कुल उसको ख़तरा होता है तब जाके ही वो अपना स्टिंग रिलीज़ करती है। तो इसके लिए वो अपने बचाव के लिए, डिफेंस के लिए करती है, और आई थिंक वो शायद उसके बाद स्टिंग एब्डोमेन से रिलीज़ होता है और वो शायद उसके बाद डेथ भी हो जाती है। तो इतना आप देखेंगे नहीं कि हनी बी ने काट लिया। बट वॉस्प जो होता है, ततैया येलो कलर का, आपने देखा होगा, इट रिलीजेस वॉट, हमें लगता है कि एसिड्स ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जब भी मैं बता चुकी हूँ आपको एसिड्स एंड बेसिस बोथ आर करोसिव इन नेचर। बट वॉस्प जो होता है बेसिकली इट रिलीजेस, इट हैज़ अ बेसिक स्टिंग, और वो इतना ख़तरनाक होता है, मुझे तो बहुत बार काट भी चुका है कि बहुत बुरा हाल हो जाता है उसके बाद। सो दैट इट रिलीजेस बेसिक स्टिंग। तो उस पर आप क्या लगा सकते हैं एज अ रेमेडी? आप उसमें उसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई व्हाट? विनेगर ऑल्सो। विनेगर आप लगा सकते हैं, लेमन जूस है ना, लेमन जूस ऐड कर स्किन पे लगा सकते हैं, बट स्टिंग निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और भी कोई भी एसिडिक चीज़ जो भी आपको घर में दिखे विच कैन नॉट हार्म यू, ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स कुछ भी लगा सकते हैं। इसी केस में ऑर्गेनिक बेसिस आप लगा सकते हैं, ओके। और ऑर्गेनिक एसिड्स तो मैं बोली, सॉरी, बेसिस में आप वो लगा सकते हैं। एक तो मैंने बेकिंग पाउडर पेस्ट बताया आपको, अनदर थिंग इज आप सोप से, डिटर्जेंट से भी लगा सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू वन स्मॉल इंसिडेंट, बहुत ही जल्दी से बता देती हूँ मैं, एज हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई। मेरी फ्रेंड, हम दोनों, मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग एक प्लांट में हमने वर्क करा था, क्वालिटी कंट्रोल लैब में हम वर्क कर रहे थे, और उसके हैंड पे गर्बर एसिड पड़ गया था, ओके, और एकदम से बिल्कुल उसका हाल जो है ख़राब होने लगा हैंड का। तो द मिल्क मैन दैट वर प्रेजेंट, मैं क्वालिटी कंट्रोल लैब में जब मैं आपको बता रही हूँ ट्रेनिंग करी थी, तो उन्होंने फ़ौरन जो मिल्क मैन जो उस जगह खड़े हुए थे, लैब की तरफ खड़े हुए थे, कलेक्शन सेंटर की तरफ, उन्होंने फटाफट रेमेडी क्या बताई? टू अप्लाई डिटर्जेंट
दे वर सो क्विक, मतलब वी वर सरप्राइज्ड कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें इतनी जल्दी उसकी रेमेडी समझ में नहीं आई, हम घबरा गए देख के, मैं भी इनफैक्ट देख के घबरा गई, लेकिन उन्होंने फटाफट बताया कि डिटर्जेंट कुछ भी डाल दीजिए, सर्फ डाल दीजिए, तो उससे क्या हुआ, उसका और ज़्यादा स्किन पे हार्म होने से वो बच गया। ओके, तो ये जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं दे हैव लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन। ऐसे ही बच्चों प्लांट्स भी, हम नेटल प्लांट पढ़ेंगे, दैट नेटल प्लांट इज हर्बेशियस प्लांट। ओके, नेटल, और ये प्लांट जब आप गुजरेंगे तो आप, अगर ये एक्सीडेंटली आपका हाथ वाथ लग गया, इसके स्टिंगिंग हेयर होते हैं, और अगर आपका हाथ लग गया तो इट रिलीजेस व्हाट, इट रिलीजेस मेथेनोइक एसिड। ओके, एम कैपिटल कर देते हैं, मेथेनोइक एसिड। ओके, विच इज कॉमनली नोन एज फॉर्मिक एसिड। तो उसका एंटीडोट क्या है, नेचर ने खुद ही दिया है, डॉग प्लांट which grows very near to this in the vicinity of this plant, nettle plant। तो नेटल लीव से अगर आप टकरा गए, कुछ भी है, आपके उसके स्टिंगिंग हेयर्स लग गए हैं, तो व्हाट यू विल डू, you know, if you know the nature that it is acidic in nature, you can apply the leaf of dog plant, और वो क्या होगा, it is, अब इसका नेचर आप बता सकते हैं क्या हो सकता है, it is obviously basic in nature, so it will neutralize the effect of the acid ऑफ द नेटल प्लांट। जो नेटल प्लांट में एसिड प्रेजेंट था उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देगा। सिमिलरली एंट स्टिंग, एंट जब काटती है तो उसमें क्या स्टिंग प्रेजेंट होता है, मेथेनोइक एसिड, कॉमनली नोन एज फॉर्मिक एसिड, बता चुकी हूँ मैं आपको। तो सेम आपको एंटीडोट याद रहेगा। अब हम डॉग प्लांट तो नहीं ला सकते हैं, वी नो बेसिस जो हमारे घर में रेडली अवेलेबल है, बेकिंग पाउडर, पेस्ट है ना, सोप इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, सोप सोल्यूशन आपने लगा लिया, कुछ भी जल्दी से लगा लें आप इस तरह का, तो इट कैन गिव यू अ रिलीफ। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ।